Thank you, Father. You are the greatest of all, Lord. Thank you, Father. Thank you for angels surround us, Lord. Thank you, Father. You're the Father to the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty. We cry glory, glory.
you are the one who fights for us, Lord. You are our Father, Lord. You're the Father to the fatherless, the answer to my dreams. I see you crowned in righteousness. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty. We cry glory, glory. We cry glory to the King. I am so hard to talk about glory, glory, glory. We cry glory to the King. सिर्फ तुझको ही महिमा खुदा. We cry glory, glory. We cry glory to the King. Comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty. We cry glory, glory, glory to the King. Thank you, Lord. जब हम अकेले होते तो हमारे साथ होता है खुदा. Thank you, Lord. हमारे सपनों का जवाब तू है खुदा. तू हमारे सरों को ऊंचा करता है खुदा. हम योग्य नहीं है फिर भी तू हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा. Comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty. We cry glory, glory. We cry glory to the King. Thank you, Lord. You lift our heads high, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We bow before you. We adore you, Lord. We honor you, Lord. You're great, Lord. Thank you for you never leave us nor forsake us, Lord. Thank you for you have been with us through the hard times, Lord. Thank you, Lord. Thank you for our victories in you, Lord. Thank you, Lord. We offer ourselves, we offer our lives to you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबको यीशु मसीह के नाम से Our अभिवंदन. God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा He is है, awesome. वो अद्भुत है. Today He wants you to stand and be strong. और आज वो चाहता है आपसे कि आप
खड़े हो जाए और बलवंत हो जाए। For He wants you to walk uncompromisingly in the steps which He gave to you. और वो आपसे अपेक्षा रखता है कि बिना किसी समझौते के आप अपने कदम को रखें जो परमेश्वर ने आपको मार्ग दिया है। Here all we need to come back. जहाँ कहीं से हमें वापस आना है Let us return. तो आइए वापस आइए। Let us return to the place तो आओ हम वापस आए उस जगह पर called Bethel. जिसे बेतल कहते हैं। Bethel means बेतल मतलब blessed, आश्रित, enlightened, प्रकाशमान, truthful, सच्चा, heavenly, स्वर्गीय, eternal, अनंत काल तक, eternal purposed, अनंत काल के मकसद के लिए and eternal purpose of our God. और हमारे परमेश्वर के हमारे प्रभु के अनंत काल के मकसद के लिए। We need to prepare our hearts, minds, और हमें जरूरी है कि हम हमारे मन को और हृदयों को बनाए। why I am on this planet Earth मैं क्यों इस पृथ्वी पर हूँ and I need to hear from God. और मुझे जरूरी है कि मैं परमेश्वर से सुनूं। Genesis उत्पत्ति 35th chapter and first and second verse. 35 अध्याय पहला और दूसरा वचन। In the meantime, God said to Jacob, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, Arise उठ जा and go up to Bethel और बेतल को जा and dwell there और वहीं रह and make there an altar to God और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना who appeared to you when thou flee from thy brother Esau. जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग जाता था। Jacob, having called together all his household, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, said, Cast away the strange gods that are among you, तुम्हारे बीच में से जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको and be cleansed and change your garments. और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। There are times when something wrong takes place in our lives. और ऐसा समय आता है कि हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाता है। You know what happened to Jacob? आप जानते हैं कि याकूब के साथ क्या हुआ? His daughter Dinah was raped. और उसकी बेटी दीना का बलात्कार किया गया। A very sad thing. बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही दुख की बात है, Which should never happen in Israel. जो इज़राइल में होना नहीं चाहिए था। Next, what happened? और उसके बाद क्या हुआ? His children made a covenant with the wrong people. और उसके बच्चों ने गलत लोगों के साथ गलत वाचा बांधी They broke the covenant. और वाचा को तोड़ डाला। God's people never break the covenant. परमेश्वर के लोग कभी भी वाचा को नहीं तोड़ते। What happened? क्या हुआ? If that covenant would have been successful, अगर वो वाचा जो है वो कामयाब रहती थी, then the whole seed which God chose would have been destroyed. तो पूरा जो बीज जो परमेश्वर ने चुन कर रखा वो पूरा ही नाश हो जाता था। They would have mangled and mixed with the Gentiles. और वो अन्य जातियों के साथ मिक्स हो जाते थे। They broke the covenant. उन्होंने वाचा को तोड़ डाला। They promised and they killed people. उन्होंने वाचा बांधी और लोगों को मार डाला। They did murders. और उन्होंने बहुत लोगों की हत्या कर डाली। God has not called for that things. परमेश्वर ने उस चीज के लिए नहीं बुलाया। They adopted a own pattern. उन्होंने खुद के ही तरीके को अपनाया। They followed their anger. और वो अपने
गुस्से को क्रोध। लेकर, क्रोध को लेकर आगे बढ़े They followed their anger. और गुस्से और क्रोध के पीछे चलने लगे They disobeyed their father. और अपने पिता को की आज्ञा का पालन आज्ञा। नहीं किया। They made the mess of everyone. हर एक का बुरा कर दिया They brought a fearful situation to the whole family. और पूरे परिवार के लिए बहुत ही भय की परिस्थिति को लेकर आए। Why? क्यों? What happened? क्या हुआ? What is there with you? आपके पास क्या है? Why the enemy attacks you? दुश्मन क्यों आप पर हमला करता है? Which door you have opened for the enemy? और दुश्मन के लिए आपने कौन सा दरवाजा खोल कर रखा Many है? a times you may be thinking and saying that I am serving God. बहुतों बार आप सोचते होंगे और कहते होंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता Is हूँ। it? क्या यही है? God called you to serve God in that way? क्या परमेश्वर ने आपको इस तरह से सेवा करने के लिए बुलाया? What you're doing? आप क्या कर रहे हैं? Is it pleasing to God? क्या ये परमेश्वर को अच्छा लगता भाता है? है? भाता है? Are you taking the steps in which God will rejoice? या आप उन कदमों को उठाते हैं जो जिससे परमेश्वर खुश रहता है? Are you? क्या ऐसा करते हैं Are आप? you taking such a steps which will please Him? क्या आप ऐसे चलते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो You may be जाए? thinking that no one is watching you. और आप सोचते होंगे कि आपको कोई नहीं देख रहा है। Why? क्यों? Something has gone wrong. कुछ तो गलत हुआ है। There is no proper fear of God. परमेश्वर का सही भय नहीं है। Something has shattered you from your goal. आपके मकसद से किसी ने आपको अलग कर दिया है। Are you called to be one? क्या आप एक का होने के लिए बुलाए गए हैं Are you divided? या आप अलग हो गए हैं? Which path you are following? कौन से कदम को, कौन से मार्ग को आपने अपनाया है? We need to check our lives. हमें हमारे जीवन को परखना है। Why, Lord? क्यों प्रभु? That girl went, Dina, age of 14 or 15, outside, seeking some friends और and women's. और दीना जो थी वो जब 14-15 साल की थी वो स्त्रियों को बाहर देखने के लिए गई। Why there are no friends in your house? क्या आपके घर में आपको दोस्त नहीं है? In your brethren? आपके भाई बहनों में? In your church? आपके कलीसिया में? She went out. वो बाहर गई। Something is there in your life which is open for the enemy to attack you. कुछ तो ऐसा है आपके जीवन में जो दुश्मन को हमला करने के लिए खुला सा है। Maybe full of lies, हो सकता है पूरा झूठ, hatred, नफरत or mixing the things, या चीजों को मिक्स करना or half truth. या आधा सच्चाई। God is preparing His church in this end time. परमेश्वर कलीसिया को बना रहा है इस अंत समय में। Maybe some hatred, हो सकता है कुछ नफरत jealousy, या जलन, some wrong records. कुछ गलत रिकॉर्ड्स। We need to check our own lives. हमारे खुद के जीवन को, For we need to make up to the end. क्योंकि हमें अंत तक चलना है We need to make up to the rapture. और रैप्चर यानी उठा लिए जाने तक हमें खड़ा होना है, रुका रहना है. रुका रहना टिका है, रहना है. टिका रहना है। We should not miss the rapture. और हम जो है उठा लिए जाने को मिस नहीं होना So we चाहिए। need to bring about the change. हमें इसलिए हमारे अंदर बदलाव को A लेकर आना change है, which will please God. वो बदलाव जिससे परमेश्वर खुश होता है। We will see. हम देखेंगे। He says वो कहता है to Jacob, याकूब को, and God said to Jacob. तब परमेश्वर ने याकूब से कहा। Many a times बहुतों बार in our life, हमारे जीवन में no one is there to comfort us. कोई भी नहीं होता जो हमें शांति दे सके। Maybe
they can't understand us. या तो ऐसा होता है कि वो हमें समझ नहीं पाते, Maybe we can't take their comfort in our lives, or we can't be comforted with them. या तो ऐसा होता है कि उनसे हमें शांति नहीं मिलती And we are in such a pain. और हम इतनी पीड़ा में होते हैं। But praise God, पर प्रभु की स्तुति in हो, your pain, आपके दर्द में there is a pain relief. दर्द पीड़ा को मिटाने वाला है। Yes, God is going to come. परमेश्वर आएगा। Here it says, यहाँ पे कहता and है, God said to Jacob, तब परमेश्वर ने याकूब से if you are कहा, a seeker of God, अगर आप परमेश्वर को if you are खोजते sold हैं, out for God, अगर आप परमेश्वर के लिए बिक गए if हैं, you are totally for God, अगर आप पूरी तरह से if your परमेश्वर के intentions लिए are for हैं, God, अगर आपके विचार परमेश्वर के लिए if you हैं, are being zealous for the God, और आप परमेश्वर के लिए पूरा जोश में हैं, as you're saying that the house of zeal for the house of the Lord is burning me. और आप कहते हैं कि परमेश्वर के घर के लिए जो जोश है मेरे अंदर चल रहा है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Now is such a time for which God is waiting for us. अब वो समय है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। And God said unto Jacob, तब परमेश्वर ने याकूब से a कहा, man who was in full of pain. वो मनुष्य, वो व्यक्ति जो पूरी पीड़ा में था, Yes, his own brother came with the troops, और उसका खुद का भाई सेना लेकर आया, but he didn't touch him. पर उसने उसे छुआ But नहीं। this is a heavy pain in which Jacob was shattered. पर ये जो था बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति थी जिसमें याकूब रह नहीं सकता था। He was in full of problems, पूरे पीड़ा से भरा full हुआ of था, fear, डर से भरा हुआ, frustrated, निराश, insulted. बेइज्जत हुआ। Because when Jacob makes a covenant, he never breaks the covenant. क्योंकि जब याकूब वाचा बांधता है वो कभी नहीं तोड़ता। So he was completely frustrated. He don't know what I'm doing right now. और वो पूरी तरह से निराश था और वो सोच रहा था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। He was confused और वो बहुत ही उलझन में था in that situation. उस परिस्थिति में। And God said unto Jacob, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, arise, यहाँ से उठ, arise, यहाँ से उठ। arise. God is saying, arise. परमेश्वर कह रहा है यहाँ से उठ। Stay no longer in the same situation. इसी परिस्थिति में तू मत रह, Arise. इससे उठ। If you can hear God, अगर आप परमेश्वर को सुन सकते हैं, don't look at the situations where right now you're in, उस परिस्थितियों को देखो मत जहाँ पर आप अभी हैं, and hear the voice of God और परमेश्वर के आवाज को सुनिए and arise. और उठिए, Arise. उठिए। No longer be in the state of confusion. और अब से उस उलझन के और ज्यादा उस उलझन के परिस्थिति में न रहे. Arise. उठिए, Do no longer be frustrated. निराश मत होइए, निराश नहीं, हतोत्साहित था, चिंतित था, चिंतित मत रहिए, frustrated, चिंतित मत रहिए, disturbed. हताश मत रहिए, No longer to be in the fearful situation. और इस डर की परिस्थिति में अब नहीं रहना। My daughter was happy. 98%, Papa. मेरी बेटी बहुत खुश थी, 98% पापा। We celebrated her happiness 2 days. हम उसका खुशी को 2 दिन मनाए, And the third day, और तीसरे a दिन list came from her college. कॉलेज से एक लिस्ट आया, And she was searching first name. और वो अपना पहला नंबर ढूंढ रही Her थी। name was not first. उसका नंबर पहला नहीं था, She was searching second name. दूसरा नंबर Her नहीं name था। was on not second. उसका नाम दूसरे पर भी She was नहीं था, searching for the third name. तीसरे नंबर पे Her name was not on a third name. थर्ड नंबर पे भी नहीं She was था, searching for the fourth name. चौथा नाम पे ढूंढ Her रही name थी। was not in a fourth name. चौथा नाम दिया ही नहीं गया था, Then somewhere she saw down, her name was there. और नीचे कहीं देखा तो उसे नाम मिल गया। She cried. वो बहुत रोई,
Papa, पापा I am not first. मैं फर्स्ट नहीं है। God is saying, परमेश्वर कहता है arise from your situation. तेरी परिस्थिति से उठ जा, Come on, get up. उठ जा, Arise from your fear. अपने डर से उठ जा, Arise from your insult. अपने बेइज्जती से उठ जा, Come on, get up. ओ खड़ा हो जा, Arise from your forgetfulness. अपने जो भुलक्कड़पन. भुलक्कड़पन से उठ जा, Because you forgot इसलिए क्योंकि तू भूल गया my laws. मेरे नियमों को। I'm going to forget you, huh? I'm going to मैं भी तेरे को भूल जाएगा तो कैसा लगेगा? It will be very dangerous. वो बहुत ही भय का बात है। Lord, you should not forget me, we cry. प्रभु हम बोलते हैं, प्रभु तू हमें भूल मत। That's why he says, इसीलिए वो कहता meditate है on my Lord day and night. मेरे नियमों पर मनन कर दिन और रात, Don't turn to the right or left, दाएं और बाएं मत मोड़, but be on that. पर उस पर टिका रहे। Let these words be always in front of your eyes. और ये जो शब्द है, ये वचन जो है हमेशा तेरे सामने हो। I will never leave you nor forsake you, says the Lord. मैं तुझे न छोड़ूंगा छोड़ूंगा और न ना तुझे त्यागूंगा। त्यागूंगा, यूं परमेश्वर कहता है। You want to experience God? क्या आप परमेश्वर का अनुभव करना चाहते Then be हैं? ready to walk with Him. तो तैयार हो जा उसके साथ चलने के लिए। He is not some made or created things. ये कुछ वो कोई तो वो हाथों से कोई- बनाया हुआ वस्तु नहीं है. He is God. वो परमेश्वर है। That means creator, सृष्टिकर्ता. No one else. और कोई भी नहीं। If anyone is a creator, then he alone is God. अगर कोई रचयिता है तो वो है केवल परमेश्वर। वही परमेश्वर है और कोई नहीं. And that he is speaking with the church right now. और वही परमेश्वर अभी इसी वक्त कलीसिया से बात कर रहा है। He's saying, get up from your forgetfulness वो कहता है कि अपने भुलक्कड़पन से उठ जा and come to the place of remembrance. और जहाँ पे याद आता है उस जगह पर आ जा। Come to that spots. उस जगह पर आ, Come to that place. उस जगह पर Come to आ, that understanding. उस समझ में आ जा। Come आ out of your weak situations. अपनी कमजोर परिस्थिति से बाहर आ जा Come to the place remembrance of that his promises. और उस जगह पे आ जहाँ पर तुझे उसके अभिवचनों की याद आए। Come to the place of his promises. और आ उस जगह पर जहाँ पर उसने तुझे वचन दिया। Come to the place of love. प्रेम के जगह पर आ, Arise उठ and go up to Bethel. और जा और बेतल तक जा। Oh, Bethel means बेतल का मतलब blessed, आशीषित, enlightened, प्रकाशमान, heaven, truthfulness, सच्चा, heavenly, स्वर्गीय, with eternal purpose of God. परमेश्वर के अनंत काल के मकसद के लिए Come to that Lord. उस प्रभु के पास आ। Come to Bethel. बेतल में आ। Don't be in Sukkot. सक्कत में Don't मत be रह। friendly with Shechem. शीशम के साथ एक मत हो। He doesn't want you to be friendly with the people on the land. वो नहीं चाहता कि इस भूमि आप भूमि के लोगों के साथ दोस्ती करें। Friendship with the world is enmity with God. दुनिया के साथ दोस्ती यानी परमेश्वर के साथ दुश्मनी। Why to become enemy of our God? क्यों हम परमेश्वर के दुश्मन बने? He's saying, come to the Bethel. वो कह रहा है कि बेतल में आ। We need to and come to that understanding. What is my Bethel? और हमें समझना है और ये जानना है कि बेतल क्या है। Bethel is a place of intimacy with God. बेतल यानी परमेश्वर के साथ गहरा संबंध। रखने का वो स्थान. Come to that place. उस जगह पर आओ। If you don't have that intimacy, अगर आपके पास वो रिश्ता नहीं है, that closeness, वो गहराई, then surely you will find some other people. तो जरूर आप दूसरे लोगों को खोजेंगे। You will find some other way. और या तो कुछ और ही मार्ग को खोजोगे। Or you will flow in your own pattern. या आप खुद के ही तरीके में चलेंगे। Oh, how you did this, brother?
हे भाई तूने ऐसा क्यों किया? I don't know. मुझे नहीं मालूम, Because I was not intimately one with God. क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ सही रीति से एक नहीं So था। he's saying, come up to Bethel. वो कहता है कि बेतल तक आ, Come up to the house of God. परमेश्वर के घर तक आ, Come to the house of God. परमेश्वर के घर में आ। House of God is full of liberty. परमेश्वर का घर पूरी आजादी का House घर of है। God is full of His plan for you. और परमेश्वर का घर पूरा आपका उसकी योजना आपके लिए है. House of God, परमेश्वर का घर where you have a strength. जहाँ पर आपको सामर्थ है, Come to the place उस जगह पर आओ where God is going to strengthen you physically, spiritually, mentally, materially. जहाँ पे परमेश्वर आपको शारीरिक रूप से चीजों में, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से आपको आशीष देता है। You know that place. आप उस जगह को You had an जानता है, experience of that place. आपको उस जगह का अनुभव है, But you're going somewhere else. पर आप कहीं और जाते हैं। You're trying to make a friendship with someone else. आप किसी और के साथ दोस्ती You're करते trying to हैं। build my house somewhere else. और आप मेरा घर कहीं और बनाते हैं। I have not chosen a Sakota. मैंने सक्कोत को नहीं चुना है। Sakot, no? 34th chapter. Okay. I have not chosen that. मैंने वो नहीं चुना I है। chose you to be in my ways, says the Lord. और मैंने मेरे काम के लिए तुझे चुना है, ऐसा मैं परमेश्वर- तुझे मेरे मार्गों में रहने के लिए चुना है, ऐसा खुदा कहता है. Then you will prosper. तभी तुम उन्नति पाओगे। Place of first love. वो जगह जो पहले प्रेम की है, Yes, when you met God. जहाँ पर आप परमेश्वर Where से you had मिले, experience with God. जहाँ पर आपने परमेश्वर का अनुभव Where you किया, enjoyed His presence. जहाँ पर आपने उसके उपस्थिति को जाना। House of El. El का घर. यानी House of परमेश्वर का God. घर, परमेश्वर का घर, House where your father pitched the tent. घर जहाँ पर आपके पिता ने तंबू डाला। We can see in Genesis 12:8 that Abraham pitched the tent there. और हम देख सकते हैं उत्पत्ति 12:8 में कि अब्राहम ने वहाँ पर तंबू डाला। Place where God's assurance is received. वो जगह जहाँ पर परमेश्वर हमें पक्का वायदा करता है, किया था और करता है. Come to that place. उस जगह पर आओ, Go up to that place उस जगह तक जाओ, of Bethel. बेतल की A जगह, place where God builds us up वो जगह जहाँ पर परमेश्वर हमें बनाता है for His glory, उसकी महिमा के लिए, for success in our lives, हमारे जीवन में जो कामयाबी है उसके for लिए, success in our journey. हमारे सफर में कामयाबी के लिए He builds us up. वो हमें बनाता है। Come to that place. उस जगह पर आओ। In Genesis 31:3 He says, उत्पत्ति 31:3 में वो कहता है, I am the God of Bethel. मैं बेतल का परमेश्वर Come हूँ। to that God. उस परमेश्वर के Be पास ready आओ to take any pain. और कोई भी पीड़ा सहने के लिए तैयार हो कोई जाओ। भी दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ. To come to Bethel. बेतल तक आने के लिए To spend a quality of time. और सही समय व्यतीत कीजिए। सही समय व्यतीत करने के लिए आप उस जगह पे आ जाओ. Isn't it? क्या How we say? हम कैसे कहते How we हैं? distribute our time in presence of God? हम कैसे अपने समय को बिताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति We में? need to check. हमें जांचना We need to जरूरी think. है, हमें सोचना है। Place where God spoke to Jacob. वो जगह जहाँ पर परमेश्वर ने याकूब से बातें की, Come to that place उस जगह पर आओ where He speaks with you. जहाँ पर वो आपसे बातें करता है, Where He spoke with you first. जिसने आपसे बातें की पहली बार। Come to the place उस जगह पर आओ where He promised you. जहाँ पर उसने आपको अभिवचन दिया, Where He said, I will be with you.
जहाँ पर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And here he says, और यहाँ पर वो Arise. कहता है, उठ and go up to Bethel और बेतल तक जा and dwell there. और वहां पर रह। Yes, you must dwell in Bethel. आप बेथल में रहना चाहिए। If you dwell in some wrong place, अगर आप किसी गलत जगह पर रहते हैं you will become friends of wrong people. तो आप गलत लोगों के दोस्त बन जाते हैं। You will become in contact with wrong things and और- wrong people. आप गलत लोगों के साथ आप कांटेक्ट रखते हैं में आ जाते हो. या उनके संबंध में आ जाते You हैं। need to be in Bethel. आपको जरूरी है कि आप बेथल में ही If you want to रहिए। worship God in His pattern, not in your pattern. अगर आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो उसके तरीके में कीजिए, आपके तरीके में You नहीं। need to think how He will be satisfied with me. आपको ये सोचना है कि वो कैसे मुझसे तृप्त हो You सकता है। need to think it. It is very necessary to think that how I can please Him. और ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे उसे तृप्त करूं, How can I please Him? कैसे मैं उसे तृप्त With करूं what He will be pleased. और किस चीज से वो तृप्त हो With सकता your है। ministry, क्या आपकी सेवकाई से, with your preaching, क्या आपके प्रचार से, with your going and distributing of alms to poor, या आप जो गरीब लोगों को मदद करते हैं उससे, with your going and taking care of widows, या आप विधवाओं को मदद करते हैं with your उससे, tithes and offerings. आपके दान दशवान से How He can be pleased. वो कैसे खुश हो सकता है। You need to think that. आपको वो सोचना बहुत जरूरी How I है। can please my God. कैसे मैं परमेश्वर को खुश करूं, How I can satisfy Him. कैसे मैं उसे तृप्त करूं। For He says, क्योंकि वो कहता है, I have not asked sacrifices. क्योंकि मैंने बलिदान को नहीं बलियार्पणों मांगा। को नहीं मांगा आपसे. What He asked. उसने क्या मांगा? What can I give? क्या मैं दे सकता हूँ? What can I take to God's temple? क्या मैं परमेश्वर के मंदिर में लेके जा सकता How हूँ? can I please Him? कैसे मैं उसे खुश करूं? Please think. आप सोचिए Please meditate. और मनन He कीजिए। says, dwell there. और वो कहता है वहां पर रह, Dwell there. वहीं पर रह। He wants you to dwell in Bethel. और वो चाहता है कि आप बेहतर में ही रहिए Nowhere else. और कहीं भी नहीं। You're not called to dwell in the places where you want to be. और आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि जहां आप चाहे वहां पर आप रहे, But you were called to dwell there where He wants you to be. पर उसने आपको इसलिए बुलाया कि आप उस जगह पर रहे जहां पे वो परमेश्वर चाहता है। He has not called you to start your own ministry, और उसने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप खुद की सेवकाई चालू your करें, own empire. आपका खुद का शासन। I'm learning this. ये मैं सीख रहा हूँ। Our ministry is God's ministry. हमारी सेवकाई जो है वो परमेश्वर की सेवकाई है। God's desire to be fulfilled. परमेश्वर की इच्छा इसमें पूरी हो। Is it that God called me to do this? क्या ऐसा है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया ये Your करने के success लिए? doesn't mean that you're in the call of God. आपकी कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ने बुलाया उधर है। जाएंगे, पिक्चर का टिकट लेंगे, टिकट मिला तो पिक्चर में गॉड ने भेजा। जाके तो देखते हैं ना गॉड ने भेजा कि नहीं। अरे वो सिनेमा टॉकीज है तो क्या हुआ? गॉड कैन स्टॉप अस, ही इज ऑलमाइटी गॉड। वो सर्व सामर्थशाली परमेश्वर है, वो रोक सकता है We will हमें। go there. हम जाएंगे He वहां। did with Balaam, but he is not going to do with you. उसने बालाम के साथ किया पर आपके साथ नहीं For करेगा। you, he wants you to be alert. आपके साथ वो चाहता है कि आप जागरूक हो। You know, children of Jacob, they succeeded in destroying the people in the land. और आप जानते हैं कि याकूब के जो बेटे थे उस जगह के लोगों को, उस भूमि के लोगों को नाश करने में कामयाब हो Every गए। male in that whole city उनके भूमि पर जो भी पुरुष था was cut off on the third day. वो तीसरे दिन पे काटा गया। Every woman in that city उस नगर की हर एक स्त्रियां was captivated by them.
उनके द्वारा वो पकड़ी गई, They were become slaves. वो गुलाम बन गई। Every animal which is good, हर जानवर जो अच्छा है they took it. वो ले लिया They were उन्होंने। successful. वो कामयाब हो गए। Successful in your ministry आपकी सेवकाई में कामयाबी पाना or successful in your life. Success in your life. या आपके जीवन की कामयाबी, Success doesn't define God. जो कामयाबी है वो परमेश्वर को डिफाइन नहीं करती है, But you need to obey Him even though there is no success. आपको उसके आज्ञा का पालन करना है। अगर आपको कामयाबी नहीं दिखे तो भी You need to obey Him even though you don't see any future. आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है जबकि आपको भविष्य भी नहीं दिखे। You need to come to that place where you need to say to your neighbor that choose what you want and go there. I will follow my Jesus. आप आपके पड़ोसी को कहना चाहिए चुन जो चाहिए और तू उधर जा, मैं मेरा यीशु के पीछे जाऊंगा. And your neighbor Lord saw here and there. और आपका पड़ोसी जो है इधर उधर देखा And he saw the green. और उसने देखा कि यहाँ पर बहुत ही हरियाली है And he followed green. और वो हरियाली के पीछे चला गया। When you follow God, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं greenery follows you. तो हरियाली आपके Prosperity पीछे follows आती है you. और उन्नति आपके पीछे आती है। Oh, if you kick the ground, the water will come. अगर आपने भूमि को मारा तो पानी उसमें से निकलेगा। If you speak with the rock will give you a living water. अगर आपने चट्टान से बात की तो वो चट्टान आपको पानी देगा। You need to just come to Bethel. केवल आपको बेतल में आना है You need to just walk with Him. और आपको उसके साथ You चलना need to है dwell there where He says to you. और आपको वहाँ रहना है जहाँ पर वो आपसे कहता Don't है। try to make up your own things. अपनी खुद की चीजों को मत करो Oh, don't try to do things in the way you want to do. और आप वो चीजें मत करो अपने तरीके में जो आप अपने आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करो. Ask God. It's very serious thing which God is speaking with the church. परमेश्वर से मांगो क्योंकि ये बहुत ही गंभीर बात है जो परमेश्वर कलीसिया से बात For करना He चाहता says, है। I have not sent them. क्योंकि वो कहता है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। So who sent them? तो किसने उन्हें भेजा? He says, I don't know who are you. वो कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो। How good it will be. कितना अच्छा है ये। He will say, वो कहेगा I know you. मैं तुझे जानता You हूँ, are my good and faithful servant. तू मेरा अच्छा और विश्वसनीय दास है। Or you should go to Him and tell that, Lord, I healed them. या ऐसा हो कि आपने आप जाके उसको- कहना चाहिए, कि मैंने उससे चंगा किया। Oh, I gave food to them. ओ मैंने उन्हें खाना दिया। Jesus, I preached your gospel. ओ यीशु मैंने तेरे सुसमाचार को प्रचार किया। Or He should say, या वो कहना चाहिए Oh, my truth and faithful servant. ओ मेरा विश्वसनीय और वफादार You were Yes. faithful in little. तो थोड़े में विश्वसनीय था। Be blessed and join my joy. आजा आश्रित हो जा और मेरे आनंद में एक हो जा। God is calling you to be there where He wants you to be. और परमेश्वर आपसे चाहता है कि उधर रहिए जहाँ पर वो आपसे अपेक्षा करता है। God wants to be there where you want to be. परमेश्वर वहाँ रहना चाहता है जहां आप हैं. If you are there where He wants you to be, अगर आप वहाँ पर है जहाँ पे वो चाहता है then He wants you to be where you are. तो वो वहाँ आना चाहता है जहाँ पे आप है। One need to be very careful तो एक को बहुत जरूरी है कि वो जागृत रहे, to know that ये जानने के लिए am I there where He wants me to be. क्या मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर वो मुझे चाहता है कि मैं रहूँ। Is God told me to do this? क्या परमेश्वर मुझे कहता है कि मैं ऐसा करूँ? Am I led by the Holy God? क्या मैं पवित्र परमेश्वर के द्वारा अगुवाई पाया Is हूँ? Holy Spirit leading me? क्या पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है? Be careful. आप जागृत Be रहिए, alert. सचेत रहिए। Know that God is faithful. ये जानिए कि परमेश्वर विश्वसनीय है। Know that God
He is loving. ये जान लीजिए कि परमेश्वर प्रेमी है। Know that He is trustworthy. ये भी जानिए कि वो विश्वसनीय He will है। never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं He will त्यागेगा। be with you. वो आपके साथ रहेगा। Where only think for yourself. केवल अपने आप के लिए जानिए, सोचिए Where God called you कहाँ पर परमेश्वर ने आपको बुलाया and where are you going? और कहाँ पर आप जा रहे हैं। What God spoke with you परमेश्वर ने आपसे क्या बातें की and what you are listening. और आप क्या सुन रहे हैं। Where God told you to put your tent कहाँ पर परमेश्वर ने आपको अपना तंबू डालने के लिए and where you कहा are putting your tent. और आप कहाँ पर तंबू डाल रहे हैं For what God called you to do. और परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया क्या करने के लिए क्या बुलाया करने के लिए and what you बुलाया? are doing. और आप क्या कर रहे हैं। You became so easily comforted. और आप इतना आसानी से सांत्वन पा लिए. सांत्वन पा And you लिए entered into a comfortable zone. और आप अपने आराम के उस जोन में चले गए, And you जगह पर चले forgot. गए और आपने उसे भूल दिया। क्या आप उसको भूल गए? क्या Is आप it like उसको that? भूल गए? क्या ऐसा है क्या? Do you remember him क्या आप उसे याद करते हैं who was with you जो आपके साथ था and throughout your journey? आपके पूरे सफर में? Do you remember the one true God क्या आप एक सच्चे परमेश्वर को जानते who हैं rescued you, जिसने आपको who बचाया, protected you, जिसने आपको सुरक्षा who दी, provided you? जिसने आपको दिया, He protected you from all those who are behind you to kill you. उसने आपको सुरक्षा दी उन सब उन लोगों सब से. लोगों से जो आपको मारना चाहते थे, आपके पीछे लगे थे। He protected you from all those who are planned against you. और उसने आपको उन लोगों से भी बचाया जो आपको मारना चाहते थे। He is same yesterday, today and वो forever. कल, आज और युगानुयुग एक सा Who परमेश्वर rescued है। you can rescue you. जो बचा सकता था वो बचा सकता है अभी भी। From everyone हर एक से who frauded you, जिसने आपको ठगा, cheated you. जिसने आपको ठग दिया। Can you come to be in His presence? क्या आप उसकी उपस्थिति में आ सकते Are हैं? you ready to walk in His guidance? क्या आप उसके अगुवाई में चल सकते Are you हैं? ready to accept His ways? क्या आप तैयार हैं उसके मार्गों को कबूल करने के लिए? Verse 1 says, पहला वचन कहता है God wants you to dwell here in Bethel. परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप बेतल में रहिए। Yes, in Bethel. बेतल में, Leave not that place. उस जगह को छोड़िए नहीं। Leave not on your own understanding. अपने खुद के समझ में मत चलिए। Follow His directions. उसके मार्गदर्शन पर चलिए। Follow His guidance and His ways. उसके ही अगुवाई में, उसके मार्गों में चलिए। Do not make your own empire अपना खुद का एम्पायर खड़ा मत in कीजिए your own ways, खुद के तरीकों में। but wait on God. परमेश्वर पर भरोसा करें। Be always for the empire of God. हमेशा परमेश्वर के मंदिर के लिए, उसके शासन के लिए All आप you रुके desire रहें। it should be His regime. और आपकी सारी जो इच्छा है वो उसके राज्य के लिए होनी चाहिए। Go. He says in verse 1, वो पहले वचन में कहता है जा, make an altar unto God. वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना। Hallelujah. You हालेलुया। need to have an altar in Bethel आपको बेतल में वेदी होना बहुत जरूरी है, where God wants you to be. जहाँ पर परमेश्वर आपको रखना चाहता है। Make altar for no other God. और किसी परमेश्वर के लिए वेदी परमेश्वर मत नहीं बना। बोलने का. ईश्वर के लिए वेदी मत हाँ. बना। Don't make any altar for any God. और भगवानों के लिए altar नहीं बनाने का. You are called with purpose. आप खास मकसद के लिए बुलाए गए। Then you can experience this living God. तब आप इस जीवित परमेश्वर का अनुभव ले सकते हैं। No other gods to be in your midst. आपके बीच में कोई और ईश्वर नहीं होना चाहिए। There should not be altar of God in the midst of other gods.
और हमारे परमेश्वर का जो वेदी है वो किसी और देवताओं के बीच में उनकी नहीं होना है। वेदी में नहीं होना An चाहिए। altar should be in Bethel. और उसका वेदी जो है बेथल में होना A Lord's चाहिए। altar to be built up in Bethel. और उसकी जो वेदी है वो बेथल में होनी And you चाहिए। need to sound a trumpet और आपको तुरई फूकनी है that to everyone हर एक को return to Bethel. बेथल में आ जाओ, Return to home. घर पर वापस आ Return to जाओ। house of God. परमेश्वर के घर में वापस आ जाओ। Come back. वापस आ जाओ। Escape from the enemy. दुश्मन से बच जाओ। Run away from those who hate you. उनसे भाग जाओ जो आपको नफरत करते हैं। Don't be in them who are lawless. उनके बीच में मत रहो जो जिनमें कोई नियम नहीं। But come to God. पर परमेश्वर के Make पास an आओ। altar unto God परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। that appeared to you वो तुझे दर्शन दिया when you fled from your enemy. जब तू अपने दुश्मन से भाग गया। You fled from those who tried to kill you. और तू उनसे भागा जो तुझे मारने की Let's कोशिश कर रहे थे। Open verse 2 and read. आइए दूसरा वचन पढ़े। Then Jacob said unto his household, तब याकूब ने अपने घराने से कहा, your God is showing that as soon as you hear, you should respond to God. जैसे आपने सुना वैसे आपको प्रतिक्रिया दिखानी है परमेश्वर को। Immediately, तुरंत, without delay. बिना किसी You can देरी see that. के। Then Jacob said unto his household, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो भी उसके संग थे कहा। Then Jacob said to his household, उसके घराने से कहा, तब याकूब ने उसके घराने से कहा and to all those who were with him, और उन सब से जो उसके संग थे he said it. उनसे कहा, Put away the strange gods that are among you. तुम्हारे बीच में जो पराय देवता है उन्हें निकाल फेंको। Today, आज God is speaking with you. परमेश्वर आपसे बातें कर रहा Are है। you going to be like Jacob? क्या आप याकूब की तरह होना चाहते Are you हैं? going to take your responsibility क्या आप अपनी जिम्मेदारी उठाना to चाहते speak हैं? to your household, अपने खुद के घराने से बोलने your के wife, लिए? your husband, your children? आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपका Are you going to speak with those who are under you? Your Yeah. whole household, your people Yeah. with you? आप तैयार हैं उनसे कहने के लिए वो सारे लोग जो आपके साथ रहते हैं, आपका घराना? If you're not, अगर नहीं so God is telling you it's your responsibility तो परमेश्वर आपसे कहता है कि आपकी जिम्मेदारी to है follow God परमेश्वर के पीछे and चलना make है them to follow Him. और उन्हें भी आपको लगाना है परमेश्वर के पीछे Tell them to चलने के follow लिए। God. उन्हें कहिए कि परमेश्वर के पीछे चलिए। Here we can see that immediately Jacob responded to his whole household तब and या- all those who were with him. तब तुरंत याकूब ने अपने घराने से और जो उसके संग रहते थे And उनसे then कहा। why he said? उसने क्यों कहा? Because he heard God. इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर को सुना। One word from God will change your destiny. एक वचन परमेश्वर से आपकी मंजिल को Man shall not बदलेगा। live by bread alone, but by every word which proceeds out of mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक उस वचन से जीता है। So you need to hear God. तो आपको परमेश्वर को सुनना If है। today you hear God, be strengthened in Jesus' name. अगर आज आप परमेश्वर की सुनते हैं तो आप सामर्थ को पाइए As यीशु soon के नाम as से। Jacob heard, जैसे ही याकूब ने सुना the power of God came inside him. परमेश्वर का सामर्थ उस पर आया। Energy, he was energized. उसे सामर्थ मिला And he spoke with his family people. और उसने अपने घराने से कहा। He spoke with his household. उसने अपने घराने से He कहा। spoke with all those who
were with him. और उन सब से भी जो उसके संग रहते He थे, said, उसने कहा, put away the strange gods that are among you. तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। You know, God knows everything about you. और अब जानते हैं परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। He knows everything. वो सब कुछ You जानता can't है। hide yourself from him. आप अपने आप को उसे छुपा नहीं सकते। He knows what you are. वो जानता है कि आप क्या है। He knows that which gods are in you, among वो you. जानता है कि कौन से देवता तुम्हारे बीच में He है। knows it very well. वो बहुत अच्छे से जानता Maybe है। your husband doesn't know. हो सकता है आपके पति को नहीं मालूम। Maybe you are hiding from your wife. हो सकता है आप अपनी पत्नी से छुपा Maybe your हो। parents doesn't know. और हो सकता है आपके माता पिता Maybe your children doesn't know. या आपके बच्चे को नहीं But मालूम। God is speaking with you. पर परमेश्वर आपसे बातें कर Are रहा you है। trying to play with God? क्या आप परमेश्वर के खिलवाड़। साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? Be serious with God. आप परमेश्वर के साथ गंभीर हो If चाहिए। He is saying there are gods among you, then check your life. अगर वो कहता है कि तुम्हारे बीच में कोई अन्य देवता है तो आप अपने आप को परखो. You may not be, your father doesn't know. हो सकता है आपके पिता को नहीं मालूम, But He knows. पर वो जानता You है। need to check. आपको जांचना None बहुत of your जरूरी brethren है। might know. आपके किसी भी भाई बहन को मालूम नहीं हो None of your household people may not know. और आपके घराने को मालूम नहीं हो Which and where and what gods are among you. कौन सा और कब दूसरे देवता आपके बीच में है। Yes, हाँ, God is saying you know it. परमेश्वर कहता है तुम जानते हो, So you need to check तो तुम्हें जांचना बहुत जरूरी and है। get rid of that gods. और उन परमेश्वर उन देवताओं से, उन देवताओं से पीछा छुड़ा लो। that strange gods वो पराये देवता which are God never mentioned about them. जिनके लिए परमेश्वर ने बोला ही नहीं Don't है, follow them. उनके पीछे मत Don't चलो, fear them. उनसे डरो मत, Follow God. परमेश्वर के पीछे Put चलो। away that strange gods. वो पराये देवताओं को निकाल दो। You need to check your life. अपने जीवन को परखो, What is that God? वो परमेश्वर क्या वो देवता है, है क्या है? वो देवताएं क्या है। Hello. You will say, come to my house. आप कहेंगे मेरे घर पर आओ, There is no photo in or idol in my house. मेरे घर में कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी फोटो नहीं। But पर God is saying, परमेश्वर कह रहा है check your life. अपने जीवन को परखो। Put away that strange gods. जो पराये देवता है उन्हें निकाल दो। That strange God may be your foolishness. वो पराये देवता हो सकता है आपकी मूर्खता हो, Maybe your anger. हो सकता है वो आपका क्रोध हो, Maybe you love to fraud others. या आपको अच्छा लगता है दूसरों को ठगना, Lust फंसाना। of money, maybe God. हो सकता है पैसों की वासना, Ministry may be your God. हो सकता है सेवकाई आपका देवता बन गई Lust हो। of the eyes may be your God. आंखों की वासना, That you all see, you want it. जो कुछ आप देखते हैं वो आप चाहते हैं, That may be ruling in your brains. और वो आपके दिमाग दिमाग में राज्य करता हो। Get rid of it. उन सब बातों से आप उनको छुटकारा पाओ। छुटकारा पाओ। Pride of life. जीवन का घमंड That one which comes through experience जो अनुभव से मिलता है in your journey. आपके सफर में, God is saying, put away परमेश्वर कहता है उसे निकाल दो। every hatred. हर नफरत It became a God. वो परमेश्वर बन गया। Oh, as Jacob's younger wife hid under her. जैसे याकूब की जो छोटी पत्नी थी उसने अपने नीचे छुपा दिया, And her husband doesn't knew that she had idols. और उसके पति को ही नहीं मालूम कि उसके पास मूर्तियां Maybe हैं। God loves you so much, हो सकता है परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता हो, but you have put all the
idols under you. पर आपने उन मूर्तियों को अपने नीचे छुपा For दिया you है, trusted that idols are something. क्योंकि आपने भरोसा किया कि मूर्तियां कुछ है। Many people think that without anger I can't solve problem. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुस्से के बिना मैं इस Without lies, I can't solve my problem. और बिना झूठ बोले मैं समस्या को सुलझा नहीं सकता. You have your own ways. आपको खुद के मार्ग है। And God is saying, get rid of that ways. और परमेश्वर कहता है उन मार्गों को से छुटकारा पाओ। Put away hatred, hypocrisy, नफरत, डोंगीपन. ढोंगीपन को निकाल Put दे away all sort of lies. और सब तरह के झूठ को निकाल दे। Telling lies to anyone. So habitual, telling lies. इतना आदत पड़ गया कि झूठ बोलते With हैं one another. एक दूसरे से, Keeping grudges against one another. एक दूसरे के विरुद्ध अपने मन में रखते हैं And stealing. और चोरी करते हैं। You may say that where I stole. आप हो सकता है सोचते हो मैंने कहाँ चोरी Check किया। your life, God is saying. परमेश्वर कहता है अपने जीवन को परखो। He says, put away that gods. वो कहता है इस तरह के चीजों को से इस तरह के देवताओं से आप छुटकारा दूर रहो, पाओ। छुटकारा पाओ. Murders, हत्या, drunkenness, पियक्कड़पन, malice, मन मुटाव और very गंदगी inside you. और जो गंदगी आपके अंदर है। Put away, yes, put away every strange gods. हाँ, ऐसे सारे देवताओं को जो पराए हैं निकाल के फेंक दो। He comes to you वो आपके पास आता and है he says, और वो कहता है arise, उठो, go up to Bethel, बेतन तक जाओ, dwell there, उधर पर रहो put away all your gods और अपने सारे देवताओं को से which are छुटकारा among पाओ, you. जो आपके बीच में है। Put away. You might have seen that gods from a long time. हो सकता है उन देवताओं को तुम बहुत ही लंबे समय से देखे हो. समय से देखे हो। Maybe you have that gods from your father's house. हो सकता है ऐसी बातें तुम्हारी ऐसी बातें नहीं. ऐसे देवताएं तेरे घर से आए हो, पिताजी के घर से आए हो. Put away that gods. उन देवताओं को निकाल दो। Be strong. सामर्थशाली बनो। Obey God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन Check करो। your life. अपने जीवन को परखो। Which God is ruling in your life. कौन सा देवता आपके जीवन पर राज्य करता है? It will ruin your life if it is not God. अगर वो परमेश्वर नहीं है तो वो आपके जीवन को नाश कर देगा। It might have come from your father हो सकता है वो आपके पिता के घर से आया हो or your past lifestyle या आपके पिछले जीवन से or past victories. या आपकी पिछली विजय से। Get rid of it. उससे बाहर निकल Put आओ। away all that gods. ऐसे सारे देवताओं को बाहर निकालो। Be clean, says the Lord. शुद्ध हो जाओ ऐसा परमेश्वर कहता है। Completely clean. पूरी तरह से शुद्ध। And change your garments. अपने वस्त्र बदल डालो। Garments of bloodshed, blood stains. वस्त्र लहू के निशान है. Change your garments, अपने वस्त्रों को बदल डालो which you did, murdered of your neighbor, your brother. जो आपने अपने भाई से अपने पड़ोसी का जो हत्या की। खून कर दिया. किसका खून किया? भाई का ही. किसका खून किया? पड़ोसी का ही. You murdered in your anger. आपने अपने गुस्से में हत्या कर डाली And get rid of that gods. और उन इस तरह के देवताओं से छुटकारा पाओ। Be clean. शुद्ध हो जाओ Put away that garments और उन वस्त्रों को निकाल डालो which speaks of your old nature. जो आपके पुराने चरित्र के बारे में कहते हैं। You have old nature. आपके पास पुराना And चरित्र you're है thinking that I will do in my God's kingdom same. और आप सोचते हैं कि मेरे परमेश्वर के राज्य में मैं यूं ही करूंगा। You don't need to build God's kingdom. आपको परमेश्वर का राज्य बनाने की जरूरत He नहीं। builds His kingdom. वो अपने राज्य को बनाता है। When you obey, जब आप आज्ञा का पालन करते in your हैं, obedience, आपके आज्ञा पालन में all powers which are in heaven above, सारे सामर्थ जो स्वर्ग में है all powers in the earth below, और सारे सामर्थ जो पृथ्वी के अंदर है, all other gods, सब देवताएं, all other powers सारे सामर्थ will be put down. वो नीचे गिराए जाएंगे And God is going to bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा। Today, make your mind आज अपने मन को to बनाइए arise उठने के लिए
from your situation, अपने परिस्थिति से, your own old patterns. आपका खुद का पुराना तरीका। Go up to Bethel. बेतल तक जाओ, Come to the हाँ। house of God. परमेश्वर के घर में आओ, Dwell there. उधर रहो, Make your house. अपना घर बनाओ, Be clean. शुद्ध हो जाओ, Take away your old garments. पुराने वस्त्रों को निकाल दो। I challenge you. मैं आपसे चुनौती देता हूँ, You will never lack any good thing of God's आपको presence. कोई भी घटी नहीं होगी परमेश्वर की उपस्थिति की। It's amazing. वो अद्भुत है। You will draw everything from Him. आप हर चीज उसमें से लेंगे। You will not have any communion with fear. आपका कोई भी बैर के साथ रिश्ता नहीं रहेगा You will be blessed. और आप आशीषित हो You will move with जाएंगे। the faith power. आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे Be चलेंगे। cleansed from all idols, all gods. सारे देवताओं से छुटकारा पाओ Let God be your God. और परमेश्वर ही आपका Should we परमेश्वर। close our eyes? क्यों ना हमारे आंखों को बंद Father, we करें। thank you पिताजी हम धन्यवाद करते for हैं all your love. तेरे सारे प्रेम We के। thank you for you speak with your children, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तू तेरे बच्चों से बातें करता है। Make us fresh. हमें तरोताजा कर। We are yours. हम तेरे हैं। We will turn हम and return बदलेंगे, हम वापस आएंगे to your house, तेरे घर पर, God's house, परमेश्वर का घर, to the first love पहले प्रेम, के पास. पहले प्रेम के पास। We'll come to you, Lord, हम तेरे पास आएंगे प्रभु and we thank you और हम धन्यवाद करते for हैं you are mindful of us. क्योंकि तेरा मन हमसे बड़ा है। Our success is us, not our victory. हमारी कामयाबी हमारी विजय नहीं है, We take it to our understanding. वो हमारे समझ में ले लेते हैं। We know now हम अब जान गए you हैं are our everything. कि तू हमारा सब कुछ है, You are our everything. तू हमारा सब कुछ है, You are my everything. तू मेरा सब कुछ है। In Jesus' name, यीशु के नाम में let everyone be blessed. हर एक आशीषित हो जाए, Everyone be strong. हर एक सामर्थ्यशाली Let हो जाए every fear be broken down in their lives. और हर एक जो डर है उनके जीवन में टूट जाए यीशु के Every नाम tongue से। that speaks against your children be cursed. हर एक जुबान जो तेरे बच्चों के विरुद्ध बोलती है वो श्रापित हो जाए Every power which raises against your dear ones और हर सामर्थ जो तेरे बच्चों के विरुद्ध खड़ा होता be है destroyed. नाश हो जाए Every weapon which is formed against your people और हर हथियार जो तेरे बच्चों के विरुद्ध तैयार हुआ work है no more. वो काम नहीं करेगा Every weapon which has been sent against your children और हर हथियार तेरे बच्चों के विरुद्ध जो भेजा गया है be destroyed. नाश हो जाए। Father, हे पिता let every curse which people curse against them हर एक श्राप जो तेरे बच्चों के विरुद्ध है वो खुद श्रापित हो जाए। every curse be turned into blessing. हर एक श्राप आशीष में बदल जाए। Every blessing हर आशीष may come to your people. तेरे लोगों के पास आए All those who listen right now by faith और वो सब जो अब इसी क्षण विश्वास और and all those who say amen, और वो सब जो आमीन कहते let it be amen to them, Lord. वो उनके लिए आमीन हो Let जाए। every weakness be destroyed. हर एक कमजोरी नाश हो जाए। Whatever may be the cause, उसका कोई भी कारण क्यों ना हो, if they have started their life journey अगर उन्होंने अपने सफर को शुरू किया है and they are getting rid of all idols and gods, सारे जो मूर्तियों से और देवताओं से वो छुटकारा पा रहे हैं, putting away all gods. सारे देवताओं को निकाल रहे हैं And Lord, as after the prayer they work on them, और जैसे ही प्रार्थना के बाद वो उन बातों पर काम करेंगे I pray let your blessed spirit rest upon them. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा आशीषित आत्मा उन पर आए And they may flourish. और वो उन्नति पाए। All those who are in the house of God,
वो सभी जो परमेश्वर के घर में All हैं, those who are in Bethel, जो सभी बेहतर में है, flourish. उन्नति पाए In Jesus' name, यीशु के नाम में flourish. उन्नति Be पाए, healthy. सेहतमंद रहे, Be strong. सामर्थशाली रहे, Love God. परमेश्वर से प्रेम करो। Amen. आमीन।